Please let me know once it's visible to all of you. Yeah, sir. Okay, great. So basically, this is the home page. This is the basic login page of Oracle Fusion Application Cloud. So here we are talking about the Fusion Application Cloud. Here all the details of the logins and credentials are on cloud server. So this is basic homepage. With the help of user or password, we are able to log into this Fusion application. So for this page, we require these two mandatory fields: user ID and password. There's also one way to log in, which is uses company single sign on, but this is based on the organization, like which organization they take this sign on or not. But these two fields are mandatory, like user and password. Similar as Oracle apps, here also we have user based access control. So just log in with this application, and I will get you some more detail about this look and feel. So this is our basic homepage for Oracle Fusion instance. Maybe you will get some different configurations based on this home page, but standardly organization use this standard page which is provided by Oracle. This customization is also available in Fusion, so you can customize this page in anyhow or based on the business requirements. Okay. Okay. So as you know, we have different modules based on the business requirements like APA, AR, GL. And here if I'm talking about only this particular instance, so here we have different module. Based on that, we have different tabs on our home screen. Okay. So like this is for HCM user. As I previously said, the complete access on this Fusion instance is based on role based access control. So we limit the user for their access on the basis of roles which we give to that particular user. Okay. We will discuss about these roles and all in detail in other classes. I will just give you an overview like how it works. Okay. Are you there, Anurag and Vishnu? Okay, great. So here we have different options like my team, my client group, my benefits. There is a one way to reach the required destinations by searching on these tabs. Or we have also an alternate option, which by clicking on this springboard, we will get all these details here also. Like maybe in some cases there is a restriction, we don't want the tab on this particular page, we want the detail on this springboard. So we will able to do this also in the additional configuration page of Fusion. Okay. So these are the details all, like as I previously tell, this is a role based access control. So this is means master user. So this particular user have all the access of all the users, so that's why all the fields are visible in this particular page. Like fixed asset is also there, expense, procurement, these are all based on that are the user who have the access for these things. Okay. So we will, like this is just like an application which you use on your phone now. There's some tabs. With the help of these tabs, you are able to enter the details of your system or based on the configurations. I just want to ask a question first. Like you have a basic knowledge of ERP, no? Like how ERP works, or you I need Yeah, to. yeah. Yeah. So this is all Oracle ERP based system, and based on their means business model, they purchase the required module from Oracle, and based on that module, Oracle provide them access for those modules. So these are the Sir, one thing. I yes, have, sir, yes. I have, suppose I have one user is create, okay, Mhm, any names. mhm. तो is the depends of the kind of कि हम उसको ऐसा नहीं है होगा ना कि हम उसको सब रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं डिपेंड्स ऑफ क्लाइंट ना डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन यस यस विशाल, व्हाट हैपेंड ना, अच्छा क्या होता है कि हम्म, फ्यूजन एप्स में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, है ना? हमारे पास यहाँ पर फ्यूजन में होते हैं रोल्स. फ्यूजन इज completely based on role based access control. Okay? Which I explained you earlier also. Like if I'm searching for here for a particular user, यूजर yes. So this SCM user have these roles.
Okay, and these roles have its privileges or data access. On the basis of that, he is only able to get the details on his login. Okay, like if I want to restrict someone to not able to get the details of employees, I want to remove this particular role to this user. Okay, Okay. similarly, in apps we have responsibility, or in Fusion we have these roles. We will Roles. discuss about this Yeah, also in later. Like we have different kind of roles, like abstract role, job role, duty roles. We will discuss all yeah. these in details in other classes. Okay. So this is just an introductory session. So I just give you a overview how it works. Okay. So if I'm talking about now the general things, like how can we load data into this Fusion system, or how can we get the details from the system. Like for loading we have here two different methods, like one is ADFDI and one is FBDI. Like one is for file based data import and other one is for ADFDI, which is also used by most of the functional persons to load the data into the system. Like क्या होता है अनुराग, कि we have different system which we want to in within a organization we have different systems like CRM, HCM, Oracle, है ना. तो हमें डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करना होता है. तो उस प्रोसेस के लिए एक सिंगल एंट्री अगर हम डालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट बल्क में अगर डाटा इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए हम एफबीडीआई या एडीएफडीआई यूज करते हैं. एफबीडीआई इज फुल फॉर्म इज फाइल बेस्ड डाटा इंपोर्ट एंड अदर वन इज एडीएफडीआई. ओके. Yeah. और एक, यस, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके. और एक हमारे पास तीसरा मेथड भी होता है जो हम रेस्ट एपीआई के थ्रू करते हैं. रेस्ट एपीआई हमारे पास एक ओरेकल की स्टैंडर्ड एक्सपोज्ड एपीआईज होती है. विद द हेल्प ऑफ दोज एपीआईज, लाइक वी यूज द पोस्टमैन फॉर कॉलिंग दोज एपीआईज फॉर टेस्टिंग. एंड पोस्टमैन से हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमें डाटा, जैसे आपके यहाँ पे डाटा विजिबल है ना, सेम एपीआई कॉल करके हम डाटा गेट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दोज डाटा हम उसको फ्यूजन में पुश कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरप्शन. उसके लिए हम फिर Okay. ओआईसी की हेल्प लेते हैं. एक्चुअली बेसिकली थोड़ा सा आपको एक पिक्चर और क्लियर कर दूं. फ्यूजन में आने के बाद ओरेकल ने अपने आप को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया. मतलब ओरेकल क्लाउड के तीन ऑफरिंग्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज सेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS. Yes, I will just note it down here so it will helpful for you also. First one is SaaS. This is known as software as a service. Second one is PaaS. Yes, platform as a service, and last one is IaaS, infrastructure as a service. Infrastructure. Yeah. So most of the organization are Good. worked on SaaS model because they just provide the software, and बाकी जो भी चीजें हैं, सर्वर मेंटेन करना, डीबीए का काम जो भी है वो ओरेकल करेगा उनके लिए. इसलिए अब इसमें कोस्टिंग की जैसे जैसे आप अगर पैस मॉडल भी लोगे तो उसमें आपका कोस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा. और आईएएस तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं या जिनका बहुत बड़ा मॉडल होता है, क्योंकि मोस्टली सर केस. सैस में समझो सॉफ्टवेयर होंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हम सर्विस प्रोवाइड ले सकते हैं ना, बस उनको हाँ हाँ. वो जितना भी हमारा जो ओरेकल होगा वो सब मेंटेनेंस वगैरह तो वो हैंडल करेंगे ना उस चीज में सैस में तो. यस मेंटेनेंस सब ओरेकल हैंडल करता है. आपका सर्वर ओरेकल हैंडल करता है. डीबी एक्टिविटीज, आपको कोई पैच लगना है या फिर आपको कोई अपडेट आना है, इस जैसे कि अभी लेटेस्ट में ओरेकल का 23D चल रहा है. अभी अब जो रोल आउट Okay. हुआ है तो अभी वो टेस्ट पे है. प्रोड पे बहुत मतलब अराउंड 2 वीक्स के अराउंड वो प्रोड पे मूव हो जाएगा. तो वो सारा ओरेकल टेक केयर करता है. ओरेकल आपको नोटिफिकेशन भेजेगा जैसे ही आपका पैच लगने वाला होगा या अपडेट आने वाला होगा, उसके बेसिस पे आपके अपडेट सारे हो जाएंगे. इन केस आपको कोई इश्यू आता है तो फिर जैसे हम R12 में भी करते थे, एसआर रेस करते हैं ओरेकल को, तो उसका सॉल्यूशन ओरेकल से हमें मिल जाता है. अगर मैं ओरेकल फ्यूजन क्लाउड की बात करूं, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई है, ये आता है आपका अंडर SaaS एप्लीकेशन. ओके. सो बेसिकली क्या है, हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया है ओरेकल ने, जिसके बेसिस पे हम अपनी जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है उसको, बिजनेस के ऑपरेशंस है उसको कर पाएंगे. ओके. तो ओरेकल फ्यूजन जो है आपका वो आ जाएगा आपके SaaS मॉडल के अंदर. अब दूसरा एक हम चीज और डिस्कस करेंगे अभी, उसका नाम है OIC. इफ आपने किसी ने सुना हो उसके बारे में, फुल फॉर्म इज ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड. सो बेसिकली होता क्या है कि
ये पैस के अंडर आता है। ये एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका सोवा है। सोवा के बारे में नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत कुछ आइडिया? विशाल एंड अनुराग? नो नो, सो सुना तो है तो एप्लीकेशन का, हाँ, पर सो बेसिकली मैं यूज। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि जैसे हमारे पास 2 डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, वन इज़ सीआरएम, वन इज़ ओरेकल। हमें दोनों को कनेक्ट करना है, ओके? तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सोआ भी वही काम करता है, और बट ओरेकल का अपना जो सॉफ्टवेयर है वो है ओआईसी, ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड, जो कि कंप्लीटली कंपैटिबल है आपके ओरेकल फ्यूजन के साथ। तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हो। मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्यूजन के बारे में। ये आपको इसकी लुक एंड फील तो समझ आ ही गई होगी यहाँ से। फिर हम ओआईसी पे चलते हैं। ये बेसिकली इसकी लुक एंड फील है। अब हमने डाटा लोडिंग का देख लिया था कि एडीएफडीआई और एफबीडीआई, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप टर्म्स समझ के कंफ्यूज मत होना अभी। ये जस्ट मैं आपको एक्सपोजर के लिए दे रहा हूँ कि जैसे कोई भी सिस्टम है, अभी हम उसके अंदर हम ये ओरेकल ने हमें दे दिया, अभी ये ब्लैंक है, तो हमें इसके अंदर डाटा तो डालना पड़ेगा ना। जो भी स्टैंडर्ड हमारा पहले से जो प्रोसेस चल रहा है वो डाटा लोड होगा। तो वो एडीएफडीआई, एफबीडीआई, या फिर हमारे पास जो इंटीग्रेशंस डेवलप करते हैं, एपीआई का यूज बेसिकली इंटीग्रेशंस में होता है, जहाँ पर आप अपने बेसिक से लॉजिक डेवलप करके डाटा को इंटीग्रेशन के बेस पे पुल कर सकते हो सिस्टम के अंदर। एंड अब हम बात करते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन की। जैसे डाटा एक्सट्रैक्शन की अगर मैं R12 में बात करूँ, तो वहाँ पे हम रिपोर्टिंग का यूज़ करते थे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिस्टम से। तो सेम प्रोसेस यहाँ हमारा फॉलो होता है। अगर हम इन गिवन टैब्स में टूल्स के ऊपर जाएँ, टूल्स के ऊपर हमारे पास एक टैब होता है रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। अगर हम इस टैब को ओपन करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा पेज खुल जाएगा। देन वी नीड टू गो दिस ऑन ब्राउज़ कैटलॉग। सो अब ब्राउज़ कैटलॉग ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। जैसे कि ये पहले ही जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है, तो ये एक रिपोर्ट क्रिएटेड है यहाँ पर एआर ट्रांज़ैक्शन समरी के लिए। ओके? सो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स बिज़नेस से आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से डाटा को यहाँ से गेट करते हैं विद इन द सिस्टम। लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी, वी नीड टू ऐड ऑल these डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द डेटा सोर्स क्या है आपका, एफएससीएम है, एचसीएम है, सीआरएम है, ओबीआई है। तो ये बेसिकली आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में कैसे वर्क करता है। अगर मैं सिंपली बताना भी चाहूँ, तो एफएससीएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उस मॉड्यूल के अंदर आपके जो जितने भी कंपोनेंट आते हैं, वो सब आपके जो एप्लीकेशन डीबी है वो एफएससीएम के अंदर होगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एचसीएम इज फॉर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड सीआरएम इज फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बेसिकली मैक्सिमम जो चीज़ें आपको एफएससीएम के अंदर मिल जाती हैं। और फिर यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी की बेसिक नॉलेज तो आपको आई थिंक विशाल आपको तो होगी। सर आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है, फ्यूजन में ओनली ना पीएल सिक्वल, ओनली सिक्वल ही काम करता है ना, पीएल सिक्वल पे काम नहीं हो सकता ना? अब पीएल सीक्वल के कुछ फंक्शन पीएल सीक्वल पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग लेवल में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएल सीक्वल के स्टैंडर्ड फंक्शंस प्रोसीजर्स बने हुए हैं, बस उनको कॉल करना होता है। ओके। हाँ, बाकी जो हम क्वेरी लिखते हैं सर, वो ओनली एसक्यूएल हाँ, क्वेरी उसके आपकी बेसिस एसक्यूएल पे। बेस्ड ही रहती है कंप्लीटली। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके। हाँ, तो एंड सेकंड पर्सन, सॉरी, अनुराग। अनुराग, आपको आइडिया होगा एसक्यूएल का थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब सर बेसिक आइडिया है कि क्वेरीज उसमें क्रिएट होते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट वगैरह, हम्म, ऐसे तरीके की क्वेरी यूज़ होती है। बट यस, जी, और मतलब प्रैक्टिकल वर्क नहीं है उसमें मेरा। यस, यस, यस। बेसिकली क्वेरी की हेल्प से हम एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, क्योंकि ओरेकल का जो डीबी है वो एसक्यूएल क्वेरी से हम कॉल कर सकते हैं। तो सेम एसक्यूएल क्वेरी के बेस पे हम डीबी में जो डाटा स्टोर होता है उसको कॉल करके लेके आते हैं यहाँ पर अपनी आउट जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरीका तो हो गया हमारे पास बीआई रिपोर्ट, जिसको हम बाद में डिटेल समझेंगे कैसे क्वेरी लिखते हैं, कैसे सेव होगा, टेम्पलेट कैसे अटैच होगा, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, अगर किसी को शेड्यूल करना है कैसे करना है। अगर जैसे आपके पास कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे अगर मैं एक जनरल एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास इनवॉइसेस हैं और उसमें अनपेड इनवॉइसेस हैं। अब मुझे चाहिए कि अनपेड इनवॉइसेस मुझे अपने ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टर्म्स अपने मुझे जो भी मेरे वेंडर्स हैं उनको भेजनी है। तो सिंगल रिपोर्ट में सारी इनवॉइसेस तो उसको कैसे भेज सकते हैं? उसकी हेल्प, बस्टिंग की हेल्प लेते हैं, शेड्यूल प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग-अलग वे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ दैट। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है
जिसके थ्रू हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज नोन एज OTBI, ओरेकल ट्रांजेक्शन बिजनेस इंटेलिजेंस की मतलब फुल फॉर्म होती है। और OTBI रिपोर्ट्स जो होती हैं वो क्रिएट करने के लिए, अगर आप, ये एक मेरे पास बनी हुई है प्रोजेक्ट डिटेल्स करके। ये बेसिकली क्या है, फ्यूजन में इन्होंने ना सिंबल जो दिए हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे चीजों को फाइंड करने में। जैसे ये जो है, ये आपका DM डेटा मॉडल का सिंबल है। डेटा मॉडल आपका अटैच होता है रिपोर्ट से, ये रिपोर्ट का सिंबल है। और ये आपका OTBI का है। तो जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट डिटेल्स की OTBI रिपोर्ट बनी हुई है, अगर इसको मैं एडिट मोड में ओपन करूं, थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो ये रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। जैसे अभी इसमें आई थिंक सो कुछ नो रिजल्ट करके आ रहा है, तो कुछ इशू होगा। बेसिकली क्या होता है कि ओरेकल ने फंक्शनल पर्सन्स के लिए OTBI रिपोर्ट को डेवलप किया है इस नए अपने ओरेकल फ्यूजन इंस्टेंस में, ताकि उन्हें यहाँ पर हमें SQL कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली बेसिस ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप आप चीजों को यहाँ पे गेट कर सकते हो। मतलब ये आपके सब्जेक्ट एरिया, ये टॉप पे जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट एरिया है। एक प्रोजेक्ट क्रॉस सब्जेक्ट एरिया एनालिसिस, ये सब्जेक्ट एरिया मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे बाद में डिटेल्स में। जैसे आपके अंदर ये अवार्ड्स आ गए, अगर मैं आपको SQL क्वेरी के बेसिस पे समझाऊं, तो ये अवार्ड्स आपका क्या हो गया, एक तरह की टेबल हो गई। इसके अंदर ये इसकी मल्टी, इसके अंदर इसके लिंक्ड टेबल्स हैं। अब जैसे ओपन करोगे यहाँ पे, तो ये आपके कॉलम्स हो गए। अब एग्जैक्टली आपको जो भी कॉलम चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हो, और उसका डाटा आपको यहाँ पे रिजल्ट क्राइटेरिया में विजिबल हो जाएगा। इन इसमें भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं, इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर लगा सकते हैं, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आप सब फुलफिल कर सकते हैं। बट एक जो मेजर पॉइंट है OTBI का, वो ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कि आपका फ्यूजन में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम करता है। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का या उस पर्टिकुलर पार्ट का रोल असाइन नहीं है, तो आप उसकी OTBI रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको डाटा, आपके कॉलम्स आ जाएंगे बट उनमें डाटा नहीं आएगा। ये इशू वहां पे जनरली आता है। ओके, सो ये हमारे पास दो मेथड है डाटा एक्सट्रैक्ट करने के, जनरली जो यूज होते हैं। एक तो आपकी BI रिपोर्ट हो गई, और अदर आपकी हो गई OTBI रिपोर्ट। ओके, सर OTBI रिपोर्ट में आई थिंक सर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा यूज करते हैं, करना पड़ता है ना सर हमको, है ना? आप रियल टाइम, मतलब उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सब आप बात कर रहे हो सब्जेक्ट एरियाज की, वो जब हम सब्जेक्ट एरियाज पे आएंगे ना, देन उसको डिटेल में डिस्कस करते ओके हैं कि इस टाइम पे क्या यूज करते हैं। ओके, ओके। एक आपकी BI रिपोर्ट हो गई, एक आपकी हो गई OTBI रिपोर्ट। थर्ड पे जो है वो आपका है, API की हेल्प से भी हम कॉल करके डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ओरेकल की स्टैंडर्ड API है, वो हम OIC लेवल पे देखेंगे कि कैसे उनको कॉल करके हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर कंप्लीटली हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन पैटर्न भी जाना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका रिपोर्टिंग हो गया, इनबाउंड टूल हो गया आपका, ओरेकल फ्यूजन के इंस्टेंस ये आपने देख ही लिया है। बेसिकली टेस्ट इंस्टेंस है, डिपेंड करता है कि बिजनेस किस मॉडल पे काम कर रहा है। आपके टेस्ट और प्रोड कम से कम दो इंस्टेंस तो बिजनेस के पास होते ही हैं। टेस्ट पे आप सारा अपने डेवलपमेंट फेज में जो भी टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम R12 में करते थे, सिमिलर सेम वही मॉडल यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है। एंड सेम जैसे मल्टीपल टेस्ट इंस्टेंस भी आप ले सकते हो, कि डेवलपमेंट अलग है आपका, टेस्ट अलग है, प्रोड अलग है। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस ने किस बेसिस पे लाइसेंसिंग परचेज की है ओरेकल से। तो बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द डिटेल्स। ओके, any question related to Oracle Fusion, look and feel, or means anything which you want to ask, Anurag and Vishal? नो सर। सर अभी जो आप जैसे हम लोग कवर करेंगे फ्यूजन का, तो इसमें हमारा डेवलपमेंट का भी मतलब सिनेरियो पता लगेगा ना, कि कैसे जैसे हम BI रिपोर्ट OTBI या अदर थिंग कि हाँ हम हाँ पूरा हाँ, डेवलप कर रहे हैं। यस यस। अभी तो मैं जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ट्रेनिंग के अंदर, तो हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक्स को उठा के रिपोर्ट डेवलपमेंट करके उसके जैसे कैसे डेटा मॉडल अटैच करना है, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, कैसे लाइव फीडिंग लेती है डाटा, कैसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है सिस्टम से, कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हो वो सिस्टम में डाटा क्या दिख रहा है, आपको कैसे चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है यूजर को भेजने से पहले, वो सब चीजें हम कवर करेंगे उसमें। वो दिस ओके मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें कवर होंगी। अभी तो हम जस्ट गिव यू अ डेमो फॉर दैट ओरेकल फ्यूजन ना। एनी अदर क्वेश्चन? विशाल, अनुराग? नो सर। ओके,
सो मैं हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जो ओआईसी है, जो कि आता है आपके पैस के अंडर। ठीक है, तो ओआईसी अगेन ओरेकल स्टैंड फॉर ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड। ये डायरेक्ट लॉगिन हो गया। मैं एक बार आपको बाहर से इसकी होम पेज दिखाता हूँ पहले। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? सर इसके टेस्ट वगैरह इस टाइम से मिल जाएंगे ना, अगर प्रैक्टिस के लिए? हाँ, वो अकॉर्डिंगली हम आफ्टर डिस्कशन जो भी होगा आपको इंस्टेंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्टिंग के लिए, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये अपना ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड का आपका लॉगिन पेज है, जैसे कि आपका फ्यूजन का था। अगर दोनों में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। इसका जो यूजर बनता है वो बनता है आपका आईडीसीएस क्लाउड पे। आइडेंटिटी क्लाउड सर्विसेज होती है हमारे पास एक आईडीसीएस, वहां पे इसका यूजर क्रिएट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पे ओआईसी का एक्सेस मिलता है। तो जैसे हमारे पास एक इंटीग्रेशन यूजर है, ये पासवर्ड है, हम यहाँ पे सिंगल साइन ऑन नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्ट हमें यूजर और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। तो आपका कुछ ऐसे आपको होम पेज स्क्रीन दिखाई देगी आपकी ओआईसी की। ओआईसी मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका एक मिडलवेयर टूल है जिसके थ्रू हम टू और दो से ज्यादा सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद एनी सिस्टम। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ओरेकल फ्यूजन के साथ ही करो, जिस भी सिस्टम के साथ आप करना चाहो उस सिस्टम के साथ आप कर सकते हो। बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टूल्स अडेप्टर्स क्या क्या यूज करना है, आपको क्या डाटा पुश करना है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी चीज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। सो अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, यहाँ से बात करूँ, हम होम पे ही हैं अभी। ये आपकी होम स्क्रीन है। ये तो बेसिकली आपकी जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनी होती हैं उसको दिखाते हैं यहाँ पे। हम बेसिकली यहाँ से रीच करते हैं। अगर हमें कहीं पे जाना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये टैब खुल जाएगा। इसके बाद माई टैक्स, माई टास्क, प्रोसेस इंटीग्रेशन। अब होता क्या है कि ओआईसी के भी 3 पार्ट होते हैं। आपके ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड होता है, एक वीबीसीएस होता है, विजुअल बिल्डर सर्विसेज, और एक होता है आपका पीसीएस, प्रोसेस क्लाउड सर्विसेज। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ ओआईसी की। सो हमारे पास यहाँ पे ओआईसी का एक्सेस है, तो हम सीधा इंटीग्रेशन में जाते हैं। इंटीग्रेशन जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने फिर ये टैब्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन पे जाऊंगा तो इस इंस्टेंस के अंदर मेरे पास जितनी इंटीग्रेशन मैंने डेवलप करी है विद इन द सिस्टम और विद इन 1.2 सिस्टम, वो सारी इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगी। ये आपको विजिबल है इंटीग्रेशन? यस सर। मैं एक छोटी सी इंटीग्रेशन आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाए कि काम होता कैसे है। इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कोई इंटीग्रेशन खोल के। अभी सिर्फ आपके ओवरव्यू के लिए है, ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओआईसी लेवल पे ना। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यूज करके हम, अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम डाटा गेट कर रहे हैं और उस डाटा को गेट करके डाटा गेट कर रहे हैं हम सेल्स फोर्स से। सेल्स फोर्स का नाम आपने सुना है? यस सर। हाँ, तो सेल्स फोर्स सिस्टम से हम डाटा गेट कर रहे हैं और उसको हमने कुछ प्रोसेस किया असाइन वेरिएबल लगा के, और उसको हमने फिर यहाँ पर ओरेकल ईआरपी क्लाउड एडेप्टर है, इस एडेप्टर के थ्रू ओरेकल क्लाउड में इंसर्ट किया। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिला, हमने उसको एनालाइज करके कुछ अपना एक ऑपरेशन किया, मैप किया और उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा बेसिकली, बस जस्ट मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए अभी आपको दिखाई है ये चीजें। अभी मैं कंपोनेंट डिस्कस करता हूँ एक एक करके, तो थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये आपकी इंटीग्रेशन आप पे आ जाओगे तो आपका पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये आपका इंटीग्रेशन का नेम है एंड ये ऑल द डिटेल्स जो भी है कि शेड्यूल है और ऐप ड्रिवन ऑर्केस्ट्रेशन है, ये बता देता हूँ। शेड्यूल ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है कि आपने अपनी इंटीग्रेशन बनाई। मान लीजिए कि आपने कोई सीआरएम से ओरेकल के लिए इंटीग्रेशन क्रिएट करी। इस सीआरएम में मेरी इनवॉइस बनती है, वो इनवॉइस मुझे ओरेकल में भी बनानी है। ओके, सर हाँ, तो होगा क्या कि हम सीआरएम के एडेप्टर को यूज करके फिर वहां से डाटा लेके उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग जो हमें प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके फ्यूजन में डिपेंड करता है कि हम किस डाटा लोडर का यूज कर रहे हैं, एफबीडीआई का कर रहे हैं या रेस्ट एपीआई का कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली एपीआई यूज होती है, और एपीआई के अकॉर्डिंग उस डाटा को मॉड्यूलेट करके एपीआई में डाटा पुश करके और उसको हम ओरेकल में एंटर करवा देते हैं। इसके बीच में काफी सारी चीजें आती हैं कि आपके अगर कहीं पे एरर आ गई तो आपको कैसे हैंडल करोगे। कोई मतलब इनवॉइस गलत चली, अगर
इंटीग्रेशन ही आपकी स्टक कर गई है। अब मैं सिंपल सिनेरियो लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ अभी सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट केस ले रहा हूँ कि मैंने सीआरएम से इनवॉइस उठाई और एडेप्टर का यूज़ करके उसको ओरेकल में फ्यूजन एपीआई यूज़ करी और उसको पुश कर दिया। अब ये मुझे चलाना है, एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये मेरा डेली होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरी इनवॉइसेस बने सिस्टम में वो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे सारी मेरी ओरेकल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बनाऊँगा, टेस्ट करूँगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेशन को बनाऊँगा शेड्यूल ऑर्केस्ट्रेशन। शेड्यूल से क्या हो सकता है, ये हमें एक फंक्शनैलिटी देता है कि आप इसको आप शेड्यूल कर सकते हो। अब मैंने इसको रोज़ सुबह 5 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया, तो रोज़ सुबह 5 बजे ऑटोमैटिकली, क्योंकि ऑल आपका क्लाउड पे है, तो आपका सिस्टम बंद है, हैंग है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपने शेड्यूल कर दिया 5 बजे के लिए, तो सुबह 5 बजे डेली ये इंटीग्रेशन चलेगी, आपकी सीआरएम से डाटा उठाएगी और ओरेकल में पुश कर देगी। अपनी अपने कन्वीनियंस के लिए मैं कोई नोटिफ़िकेशन डाल सकता हूँ कि मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाए कि आज की डेट में मेरी इतनी इनवॉइसेज़ ओरेकल में हुई हैं या इतनी डिटेल्स आई हैं। सो दीज़ ऐसे काम करती है शेड्यूल ऑर्केस्ट्रेशन एंड अनदर वन इज़ ऐप ड्रिवन। एवरीवन इज जस्ट लाइक मैनुअल मीन्स आपने इंटीग्रेशन बना दी, आपको एक बार चला दी आपने इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर आपको 6 महीने बाद चलानी है, तो उसको शेड्यूल रजिस्ट्रेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसमें फिर हम एफ डी वन क्रिएट करते हैं। एफ डी वन क्रिएट करके हम सिस्टम में रख लेते हैं। अब जब भी मुझे रन करनी होगी तो यहाँ से मैं मैनुअली पे जाऊंगा, यहाँ पे इस प्ले बटन पे, और यहाँ से इसको टेस्ट कर दूंगा। टेस्ट करने के बाद अगर मुझे कोई इसमें फील्ड वगैरह देनी होगी तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली ही रन हो जाएगी। फिर जैसे ये ओपन हुई है, यहाँ पे मुझे यूजर आईडी पास करनी है, तो मैं मैनुअली दूंगा इसको, और देन उस यूजर आईडी के लिए वो इंटीग्रेशन रन हो जाएगी। क्लियर? या कोई क्वेश्चन अभी तक रिलेटेड टू ओआईसी? ये जो आप बता रहे हो उनके बैकग्राउंड में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल ही? अब बेसिकली ना इसमें लैंग्वेज जो होती है वो तो आई थिंक जावा बेसिकली यूज होती है, वो बैकग्राउंड में चलती है, उसमें हमें कोई ज्यादा और लेना देना नहीं होता उससे, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप से हमारा काम चल जाता है। जो बेसिक मैं आपको बताता ओआईसी हूँ, में ही? हाँ, थोड़ा सा आपको जावा का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा-सा एक्स मतलब एक्स जो प्री रिक्विजिट लैंग्वेजेज़ हैं, जिसका एक बेसिक कॉमन, क्योंकि जैसे मुझे अगर कोई इनपुट देनी है ना? तो मैं पेलोड किस फॉर्म में दूँगा? तो वो जनरली आपका जेसन, एक्सएमएल और एक्सएसडी में जाता है। ये प्री रिक्विजिट है, ये आपको मतलब थोड़ा-थोड़ा आइडिया इनका होना चाहिए। ओके। आई थिंक जेसन का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अनुराग और विशाल। अगर नहीं भी या होगा तो इतने बेसिक मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो बड़ी आसान सा है, वो बता सकते हैं मतलब। मतलब ऐसे ये पता होना चाहिए कि आपकी सिंगल एरे कैसे जा रही है, मल्टीपल एरे कैसे जाती है। जैसे कि अगर मैं कॉमन छोटा सा एग्जांपल दिखाऊँ, तो जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे उसका आउटपुट, ये आपका यस सर। ये जेसन कोडेड है ये। ओके। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, समझ आराम से आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से काम करती है। मैं अदर कंपोनेंट्स पे आता हूँ, मैं आता हूँ कनेक्शंस में। अब सिंपल सी बात है, मुझे दूसरे सिस्टम को इंटीग्रेट करना है तो मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और अब मैं कनेक्शन किसके थ्रू क्रिएट करूँगा? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे एडेप्टर्स। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ एडेप्टर्स आ जाएँगे, जो ओरेकल प्रोवाइड करता है अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए, किसी और सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए। ये एडेप्टर्स विज़िबल है आपको? यस सर। अच्छा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे एडोब का भी है, बॉक्स का है, कॉनकर का है, ईबे का है, फेसबुक, इग्नाइट, गूगल ईमेल, चैट, जेडी, ये किसी भी सिस्टम के साथ जो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो आप उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इवन डेटाबेस एडेप्टर्स भी हमारे पास यहाँ से होते हैं। डेटाबेस SAP के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। जो भी एडेप्टर्स हैं, हम वो एडेप्टर्स बनाएँगे। जैसे मैं सिंपल लेता हूँ, मैं अभी रेस्ट एपीआई की बात कर रहा था, तो मैं एक रेस्ट एडेप्टर्स यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये रहा, मैंने रेस्ट एडेप्टर सेलेक्ट किया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब एडेप्टर क्या है, बेसिकली जैसे आपका फ़ोन का एडेप्टर होता है ना, कि आप उसको कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो। आप उसको स्विच बोर्ड में लगाते हो, फिर यस। उसकी जो केबल होती है उसको अपने उसमें लगाते हो, है ना? एक बेसिक तरह से हम एक कनेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए पहले एडेप्टर तो चाहिए होगा ना, इसको आप स्विच बोर्ड में लगाओगे। तो वो ये अडेप्टर है। जिस भी एप्लीकेशन से या सिस्टम से आपको कनेक्ट करना होगा, उसका अडेप्टर आपको मिल जाएगा। वो अडेप्टर यूज़ करके आप यहाँ पे उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो फुल करोगे। नेम, आइडेंटिफायर्ड, कीवर्ड, रोल। रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब रोल आपके 3 टाइप के होते हैं, ट्रिगर, इन्वोक एंड ट्रिगर इन्वोक। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे हम रोल क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम ये आप क्रिएट करोगे यहाँ पे, जैसे मैं कुछ भी अभी रैंडमली दे देता हूँ। ट ट ट ट ट ओके, ठीक है, एंड मैं क्रिएट करता हूँ।
क्रिएट करने के बाद मेरे पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा कि मुझे इसकी अदर कॉन्फ़िगरेशंस देनी पड़ेंगी। जैसे आप मैं एपीआई कॉल किसके लिए कर रहा हूँ? फ्यूजन के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका यूआरएल देना पड़ेगा, मुझे जो भी कनेक्शन यूआरएल देना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है, और दूसरा आपको देना पड़ेगा उसके उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के यूज़र नेम और क्रेडेंशियल्स, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो। ये स कन्फ्यूज़ मत होना, ये सर सारी चीज़ें। वन थिंग यस। आई हैव ए क्वेश्चन हुँ, सर, हुँ। मोस्टली ओआईसी 80% जीयूआई बेस्ड आई थिंक, सॉरी? या फिर जीयूआई बेस है सर? जैसे मैनुअली हम मान लो फंक्शनल टाइप है ना, कि हम ये चीजें फिल कर रहे हैं ओनली फॉर कनेक्शन। हुँ, 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 हुँ। हाँ, मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह बेसिकली, रहा हाँ, हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। आप बेसिकली यहाँ पे आपको कोई वो कंप्लीट कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके। ओके? तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ओके। आपको इस पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है, या मतलब ये जो पर्टिकुलर ओआईसी का आपका जो इंस्टेंस है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइम पे आपको कौन-सा कंपोनेंट यूज़ करना है, और यहाँ पर उस कंपोनेंट को यूज़ करके आप लॉजिक बिल्ड करते हो। ओके? जैसे कि ओके। मैंने कोई इनवॉइस चलाई, उससे मतलब मैंने कोई एपीआई चलाई, उससे मुझे 2 डिटेल्स मिली, ठीक है? एक सक्सेस है, एक एरर है। अब मुझे दोनों के केस में अलग-अलग ऑपरेशन करने हैं कि सक्सेस के केस में मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डाटा जाना चाहिए एचसीएम में, और फेलियर के केस में जाना चाहिए आपका फाइनेंशियल्स में, या मान लो कि आपको जाना चाहिए सब उसमें जाना चाहिए, आपका पीओ में जाना चाहिए, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं वहाँ पे एक ऑपरेटर लगाऊँगा, इसका स्विच ऑपरेशन होता है। ऑन द स्विच ऑपरेशन में मैं कंडीशन डालूँगा, कंडीशन के बेस पे वो उसको रेप्लिकेट कर देगा। ओके? तो बेसिकली आपका मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप है, बट ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ ये ऊपर से बताई जाती हैं चीज़ें, बट इंटरनली आप इसमें जाओगे ना, तो बहुत कुछ है। आपको प्रॉपर कोडिंग कोई नहीं लिखनी कि आपको सी लिखनी है, या एसक्यूएल लिखनी है, या सी प्लस लिखनी है, जावा लिखनी है, बट आपको उस जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का यूज़ आना चाहिए, अलोंग विद ये पता होनी चाहिए कि उनके कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप्स कैसे होते हैं। किस टाइम पे आपको कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। ओके? जैसे ही आपने कोई इंटीग्रेशन डेवलप करी, अगर उसमें कुछ एरर आ रही है, तो जैसे मैंने इनबाउंड और आउटबाउंड की बात की थी आपको कि एपीआईज़ को यूज़ करके हम ऑपरेशंस करते हैं, तो वो सब ओआईसी के थ्रू ही होता है ऑपरेट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ना कि मैं रेस्ट एपीआई को यूज़ करके मैं पोस्टमैन के थ्रू एक-एक डाटा को पुश कर रहा हूँ। मैं एक इंटीग्रेशन बना दूँगा, ओके। जिसमें मैं डिटेल डाल दूँगा कि भई ये जितनी भी रिक्वेस्ट आईडी है, इन सब के अगेंस्ट मेरे को इनवॉइस क्रिएट करनी है। मैं अपना इंटीग्रेशन रन कर दूँगा, वो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। ओके? Integration is ओके। used to automate the process within the Oracle Fusion ओके। instance or any other system. ओके सर। ओके? अब रीज़न क्या है यूज़ करने का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ़ एक ही सिस्टम पे काम कर रही हो, मतलब ओरेकल पे ही। ऐसा नहीं होता कि सारा काम उसका ओरेकल पे ही चल रहा है। मोस्टली केसेज़ में ओरेकल का फाइनेंस मॉड्यूल लेके रखती हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस या बिज़नेसेस, तो उस बिज़नेस के साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट उनकी एप्लीकेशंस होती है, उसको इंटीग्रेट करना होता है। उस इंटीग्रेशंस के लिए अपना ओआईसी काम होता है। ओके? ओके सर। हाँ, तो आपके कनेक्शंस बन यार काफी जाएँगे। इंटरेस्टेड है सर ओआईसी भी। ये हाँ, ये इंटरेस्टेड भी है, और यहाँ पे मतलब आपको अभी और ओआईसी के जो रिसोर्सेज़ हैं मार्केट में काफ़ी लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड है सर, और क्योंकि आई नो। अभी इसको रोल आउट होने वही काफ़ी, मतलब अभी तो इसका थर्ड फेज़ भी रोल आउट होने वाला है। बट रिसोर्सेज़ इसके लिमिटेड हैं, बट इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। मतलब जो बंदे इसको अच्छे से सीख जाते हैं ना, कि डिमांड काफ़ी है। बट हाँ ये सर। है कि इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। और सर वन थिंग, एक क्वेश्चन और था। हुँ, सपोज जैसे, चलो मेरे को थोड़ा आइडिया है, मतलब अभी मैं सिक्वल पीएस या एप्स 12 पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कोई अगर फ्रेशर होगा तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो उसको ट्रेनिंग कर सके और उसका थोड़ा अपना किस खुद चीज़ ग्रो में कर सके, किस चीज़ में? इसी में ओआईसी के लिए, या उसको पहले बैकग्राउंड मोस्टली बेसिक वो चीजें पता होनी वो चाहिए? बेसिकली बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग ना उसको एटलीस्ट ओरेकल फ्यूजन का थोड़ा बहुत, मतलब ओरेकल फ्यूजन पे उसको एक बार अगर उसने बेसिक काम कर रखा है, ट्रेनिंग का आइडिया है उसको, है ना? तो उसके लिए हाँ। थोड़ा ईज़ी रहेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप उसको ओआईसी पे लेके आओगे तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। उसको फ्यूजन में एक बार ये अगर आइडिया ओके। है कि मेरी इनवॉइसेज़ कैसे पुश हो रही है, डाटा कैसे आ रहा है, यहाँ पे डाटा मेरे को कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी हम यहाँ ऑपरेशन करेंगे, है ना? बेसिकली उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ फ्यूजन पे ही दिखाई देगा। ओके, हाँ, वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए ना, डाटा यस, ला यस, रहे हैं। यस, यस, थर्ड यस पार्टी सर। इंटीग्रेशन थ्रू डाटा आ रहा है, तो हमें डाटा यहाँ पे उसकी जो जितनी भी ऑपरेशंस की फील्ड होंगी, मतलब आपको रिस्पॉन्स ओआईसी में भी मिलेगा, बट वहाँ पे आपको रीड करना आना चाहिए कि आप कहाँ पे कैसे आपका वो
इसमें हम अपने जो मैसेजेस होते हैं उसको इनेबल कर सकते हैं, तो उनके बेसिस पे हम डाटा लेते हैं। ठीक है? ओके। ये आपके कनेक्शंस हो गए। ओके। लुकअप्स सेम जैसे हम लुकअप्स अपने उसमें यूज़ करते हैं फ्यूजन में, ऐसे यहाँ पे हम लुकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लुकअप क्रिएटेड है एटीएम बीयू आईडी लुकअप का। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर एक बिज़नेस यूनिट के लिए यहाँ पे एक आईडी को वो कर दिया गया, असाइन कर दिया गया है। अब इस लुकअप को हम डायरेक्टली अपने इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ भी उसको हमने ये लॉजिक लिखा हुआ है कहीं पे इंटीग्रेशन में कि जहाँ भी उसको आईएन बिज़नेस यूनिट मिलेगी, तो उस आईएन बिज़नेस यूनिट के प्लेस पे वो क्या आईडी ये वाली आईडी पास करेगा। आई थिंक लुकअप का तो बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को ना? हाँ। तो लुकअप को इतने मेजर नहीं है, सेम लोग ये इन लुकअप्स को हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। पैकेज सिंपल आपका ये हो गया कि मैंने इंटीग्रेशंस बनाई और मुझे एक मेरी कोई पर्टिकुलर सीआरएम की इंटीग्रेशन है, 5 इंटीग्रेशन है। तो मैंने एक पैकेज बनाया और उनको सारे एक ही पैकेज में सारे इंटीग्रेशंस को डाल दिया। मतलब जब आप इंटीग्रेशन डेवलप करते हो उस टाइम आपको पैकेज नेम डालना होता है। जैसे इस पर्टिकुलर बी3 पैकेज के अंदर 5 इंटीग्रेशंस हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ फ़ोल्डर कि आपके फ़ोल्डर के अंदर 5 फाइल्स है ना? ये ऐसे काम करता है आपको। एजेंट्स आपके रोल में आते हैं जब आपको किसी डेटाबेस के साथ अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना होता है। तो आपको ये एजेंट्स उस सिस्टम पे इंस्टॉल करने होते हैं और फिर वहाँ यहाँ ओएसिस उसको कॉल करना होता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो। एंड ये आपके एडेप्टर्स मैंने वहाँ पे आपको एडेप्टर्स दिखाए थे जब आप कनेक्शन क्रिएट करते हो तो आपको क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एडेप्टर्स आ जाते हैं। और इन केस जैसे अगर आप यहाँ पर भी एडेप्टर्स चेक करना चाहते हो कि मेरे सिस्टम में कौन-कौन से एडेप्टर्स हैं, तो जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं कंप्लीटली चेक करूँ तो मेरे पास 18 एडेप्टर्स अवेलेबल हैं, 80 सॉरी 81 एडेप्टर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। ओके? ओके। सर जैसे जैसे आप हमारा कोई सपोज़ टेस्ट इंस्टेंस है, ठीक हुँ, है? हुँ। तो हम ये जो हमारी सर्विसेज़ हैं, अडॉप्टेड हैं या एनीथिंग जो भी सर्विसेज़ यूज़ हो रही हैं, तो हम उसका एक मिनिमम टाइम तक एक लिमिटेशन होती है या फिर हम एनी टाइम, एनी अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं? टेस्ट ओनली फॉर पर्पज़ ऑफ द टेस्टिंग। अ, आप इंस्टेंस की बात कर रहे हो ना? मतलब हाँ, अगर हाँ। ओआईसी का टेस्ट इंस्टेंस आपने इंस्टेंस के अंदर ये सर्विसेज़ हैं, ये अडॉप्टेड हैं या अदर थिंग्स जो भी हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है ना, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन ने इसको परचेज़ किया हुआ है। है ना? तो उससे पहले ऐसा नहीं हाँ, होता कि वो एकदम से बंद कर देंगे ओरेकल वाले ना, कि उनकी हमेशा वो ओके, जाती ओके, है मतलब ओआईसी पे क्या होता है मैसेजिंग कॉस्ट जाती है। टेस्ट पे तो ओके, नहीं जाती, प्रोड पे रहती है वो मैसेजिंग कॉस्ट, टेस्ट तो आपका टेस्टिंग के लिए होता है। बट डिपेंड करता है वो प्रोड के ऊपर ही। अगर प्रोड की जैसे कि आपकी पेमेंट हो रखी है, तो वो आपको क्या करता है कि मैं आपके जैसे मैसेजिंग कॉस्ट होते हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि आपके इतने मैसेजेस बचे हुए हैं। क्योंकि जैसे हम एपीआई कॉल करते हैं, तो एपीआई कॉल पे उसका एक मैसेज खर्च होता है। ओके, तो मैसेजिंग के बेसिस पे वो क्या करता है ओरेकल चार्ज करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जैसे मैसेजेस कम होने लगते हैं वो उनके पास नोटिफिकेशंस जाती है कि ऐसे-ऐसे आपके ये आपको ये रिचार्ज कराना है या मतलब जो भी आपका प्लान है, तो वो उसको रिफ्रेश करते हैं अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट करता है। टेस्ट में ऐसी इश्यू नहीं आता बट मेजरली प्रोड के लिए वो सारी सारी चीज़ें फॉलो अप करते हैं। ठीक है? तो ये आपके एडेप्टर्स हैं। डेटा मैपिंग वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में हम जब इंटीग्रेशन डेवलप करेंगे उस टाइम आपको बेटर समझ में आएँगी। ये जस्ट फॉर एक ओवरव्यू था कि इंटीग्रेशंस काम कैसे करती हैं, यूज़ कहाँ होती हैं और इन केस मतलब ये किस ऑफरिंग के अंदर आती है। तो ओआईसी आपका पैस के अंडर आता है ओरेकल की और आपका जो ओरेकल फ्यूजन है वो आपका आता है सेस के अंडर। ओके? ओके सर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक फ्यूजन एंड ओआईसी? अनुराग एंड विशाल? सर फ्यूजन में और ओआईसी में मोस्टली चीज़ें तो कवर हो जाएँगी ना डेवलपमेंट साइड या अदर थिंग जो भी चीज़ें होंगी ट्रेनिंग। विशाल आई थिंक शायद नवनीत ने आपको बताया होगा कि ओवाईसी और फ्यूजन है ना ये दोनों कंप्लीट अपने आप में एक मतलब डिफरेंट ट्रेनिंग्स है दोनों की। ओरेकल फ्यूजन की आपकी अलग है, ओआईसी की अलग है। जितनी भी आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी ओरेकल फ्यूजन ओके, में कंप्लीट हो जाएंगी। ओआईसी आपका ओके, आ जाता है पैस के अंडर, जहाँ पे आपको कंप्लीट इंटीग्रेशंस मिडलवेयर एज़ अ मिडलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू बताया जाएगा कि कैसे आप डिफरेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या-क्या कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो पैस लेवल पे आती है, वो आपके ओआईसी के अंडर आएँगी। अच्छा, आई आईएएस अंडरस्टैंड तो सर। बहुत ही मतलब
अभी तक तो मैंने देखा नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है ओरेकल का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। आईएएस ऑफरिंग जो है, ओके। वो काफ़ी ज़्यादा हम्म। ऑफरिंग है। उसमें क्या होता है बेसिकली आपके हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं, सर्वर वगैरह होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डाटा को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंतित है कि हमारा डाटा लीक नहीं होना चाहिए, ये समथिंग ऐसा कुछ है, तो वो क्या करता है फिर वो आईएएस मतलब एज़ अ सर्वर भी परचेज़ करते हैं ओरेकल से। उसकी एज मेंटेनेंस ए वगैरह जैसे डाटा सेंटर वगैरह होते हैं। यस, यस। उसकी मेंटेनेंस ओरेकल ही देखता है, बट वो खुद परचेज़ करते हैं। उसका वो मतलब सब चीज़ें फिर फ़ॉलो अप वगैरह लेते हैं ओरेकल से। तो वो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉलो अप करती है। मेजरली पैस और सेस पे ही काम करते हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था आपका ओआईसी और ओरेकल फ्यूजन का। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अनुराग आप बता सकते हो एंड विशाल। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें एसक्यूएल और पीएल का मतलब कितना यूजेस है कि नहीं है? देखो, मैं ओरेकल फ्यूजन की बात करता हूँ। ओरेकल फ्यूजन में आपको पीएल सीक्वल की ज़्यादा नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, एसक्यूएल आपको एक इंटरमीडिएट लेवल आई थिंक, अगर आप बेसिक पे भी हो तो आप इंटरमीडिएट पे आ जाओगे काम कर करके। आप थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एसक्यूएल के बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करो। आप इंटरमीडिएट लेवल पे ऑटोमैटिकली आ जाओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जहाँ आपको थोड़ा लॉजिक डेवलप करना पड़ता है बेस्ड ऑन आवर असम्पशन्स। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपका एसक्यूएल का थोड़ा-सा बेस थोड़ा चाहिए। बाकी पीएल सीक्वल कोई ऐसे मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएल सीक्वल की स्टैंडर्ड पैकेजेज़ हैं, वो धीरे-धीरे काम करते-करते आपको पता चल जाएगी। कोई और क्वेश्चन? नो सर। विशाल आपको? या सर, नो सर। Okay, Navneet. So this is all from my side. If you want to anything, then please ask. Okay, Navneet. Thanks. Thanks, Isal. थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू।